Today we are discussing about enzymes required for DNA replication. वो कौन से एंजाइम्स हैं जो हमें चाहिए प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. We study first the enzymes, the requirements for the process of replication. Then after we will go through the process of the DNA replication. अब कौन कौन से एंजाइम्स इसके लिए रिक्वायर है. पहला जो एंजाइम हमें चाहिए that is known as a helicase. Helicase is the enzyme which helps in unwinding, or we can say uncoiling, or we have one more thing, that is unzipping of double helical DNA. That means the DNA is unwinded with the help of the enzyme. That enzyme we call as helicase. It's like that if we will take a double-stranded DNA, that is if I am taking two fingers, now these two fingers are winded upon each other, and the helicase will unwind these two helicals, and these two helicals are open to each other. When these two helicals are open to each other, what happens? They want to rejoin, they want to rewind. The reason is they have a tension upon it. It's just like if you are opening a rope, threads of the rope, what happens? If you leave the force on them, what happens? The threads again get rewinded to each other. Similarly happens with the double-stranded DNA. If you will open the double-stranded DNA, when you will make the two helicals of it open, what happens? A stress is created upon both of the strands. Now these both of the strands, they want to get rewinded to each other. For that, to keep them unwinded, we have one more enzyme that is known as a topoisomerase. That means if we have a double-stranded DNA here again, say we have a double-stranded DNA. Now what will the helicase do? Say for instance, if we have a helicase enzyme here binded, now this helicase enzyme will help in unwinding. It will help in unwinding of DNA. That means it works like a zip. When this moves down and the double helical strand is what we call unwinded, it becomes two helicals now. Now we have the formation of the two helicals. This is the one helical and this is the another helical. Now two helicals are unwinded with the help of the enzyme known as helicase. Now they want to rejoin. They want to get rewinded. The reason is both of the strands have a tension upon it. They have a stress upon it. Now they want to rejoin, have the more stable structure. But what happens? We have to keep them unwind. The reason is we have to go for the replication process. And the most important thing, these both of the strands, they replicate simultaneously. ये भी replicate करेगी और उसी टाइम ये भी replicate करेगी. इसको बोलते हैं simultaneously replicate करना. अब उसके लिए क्या होता है? हमारे पास एक एंजाइम है, उसको बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज. ये टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? जैसे ही डीएनए स्ट्रैंड है, यू कैन टेक दिस टाइप ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड. ये एक डीएनए स्ट्रैंड है. ये डीएनए स्ट्रैंड को क्या करेगा? इसको कट करेगा. बाद में इसको रोटेट करेगा. जब कट किया, रोटेट किया, उसके बाद रिसील कराएगा. तो हम देखेंगे अभी इसमें थोड़ा बैंड था, हेलिकल था. अब इसने क्या किया? इसको अनवाइंड किया, फिर उसको रोटेट कराया, अब उसको क्या किया? रिसील किया. उससे क्या होगा? इसके ऊपर जो टेंशन होती है, द टेंशन व्हिच इज अपॉन दिस स्ट्रैंड, वो टेंशन जो है वो कम हो जाती है. सो वी कैन से टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा? इट कट्स डीएनए स्ट्रैंड, उसके बाद क्या करेगा? रोटेट्स. ये रोटेट कराता है इसको एंड रिसील्स, उसके बाद रिजॉइन कराता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को. सो टोपोआइसोमेरेज असल में क्या करता है? इट रिलीव्स tension on single stranded DNA. क्योंकि ये डीएनए चाहते हैं कि हम फिर रिवाइंड हो, तो ये जो स्ट्रेस इसके ऊपर है वो रिलीव कौन करेगा? टोपोआइसोमेरेज. वी हैव वन मोर एंजाइम. हमारे पास और एक एंजाइम है, जैसे सेकंड एंजाइम है. हमारे पास और एक एंजाइम है, थर्ड एंजाइम जिसको हम बोलेंगे, तो वो है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. हमारे पास और एक एंजाइम है, यहाँ प्रोटीन बोलेंगे. ये भी क्या करता है? ये भी इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है. दिस इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, या आप इसको बोल सकते हो इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड
स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। अब ये सिंगल स्टेबलाइजिंग प्रोटीन करता क्या है, ये स्टेबलाइज करता है इस सिंगल स्ट्रैंड को, और इसके ऊपर से क्या करता है, ये भी इसके ऊपर से जो टेंशन है जो ये चाहते हैं रिवाइंड होना, उसको क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। सो वी कैन आल्सो से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्टेबलाइजेस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करता है, ये इसको स्टेबलाइज करता है ताकि अनवाइंड रहे और बहुत ऑफ द स्ट्रैंड्स में क्या हो जाए, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए। उसके बाद हमारे पास और एक एंजाइम है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। वो एंजाइम जो हमारे पास है दैट इज नोन एज ए लाइगेज। वी हैव वन मोर एंजाइम दैट इज नोन एज लाइगेज। और एक एंजाइम जो हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं लाइगेज। ये लाइगेज क्या करता है, हमने देखा अभी कि हमारे पास यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट कट हो गया 2' के द्वारा, उसके बाद उसने क्या किया, इसको रोटेट किया, फिर इसको यहाँ पे रिजॉइन किया। जो ये रिजॉइनिंग है या जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स है, ये होता है लाइगेज एंजाइम के थ्रू। सो वी कैन से जॉइनिंग ऑफ, इट हेल्प्स इन जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में हमें हेल्प करता है। और हमारे पास अभी डीएनए जब हम बनाते हैं, हमारे पास एक स्ट्रैंड ऐसी भी होती है जिसको हम बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। उस लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक स्ट्रैंड लीडिंग होती है और एक स्ट्रैंड लैगिंग बन जाती है, बाद में हम डिटेल में देखेंगे। और जो लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं उसमें जो डीएनए बनता है वो फ्रैगमेंट्स में बनता है, वी कॉल देम एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। और वो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को भी ज्वाइन करने के लिए हमें किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो एंजाइम होता है हमारे पास लाइगेज। वो बाद में देखेंगे डिटेल में। हमारे पास और एक एंजाइम भी है, उस एंजाइम का नाम है वी हैव द प्राइमेज। हमारे पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं प्राइमेज। ये प्राइमेज क्या करता है, ये सिंथेसिस ऑफ प्राइमर करता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर बनने में हेल्प करता है। ये प्राइमर होता क्या है, प्राइमर होता है एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ या शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। ये 15 टू 12 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो अगर हम देखेंगे प्राइमर क्या होता है, ये शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए होता है। इट्स अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, बिल्कुल आरएनए है ये। और कितने का बना है, 15 टू 20 न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना होता है। अब आप बोलोगे सर ये प्राइमर बनाने की जरूरत क्या है। असल में जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो हम यूकैरियोटिक सेल में इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली हम डीएनए स्ट्रैंड्स को जैसे इस स्ट्रैंड को दूसरी स्ट्रैंड बनाना है, इस स्ट्रैंड को दूसरी स्ट्रैंड बनाना है, उसके लिए जो हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम एंजाइम दैट इज नोन एज ए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब उस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसको क्या करना है, उसको न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करना है टू ईच अदर। तो उसके बाद एक नई स्ट्रैंड जो न्यूक्लियोटाइड्स के वजूद में आ जाएगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक फिर एक नई स्ट्रैंड वजूद में आ जाएगी। लेकिन वो क्या करता है, वो एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन नहीं करा पाता है। तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए एक शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। सो हम ये बोलेंगे हमारे पास जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ये डीएनए जो हमारे पास है ये बनाते हैं शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। ये पहले बनाते हैं शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। उस शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए को हम बोलते हैं प्राइमर। और इस प्राइमर के ऊपर क्या होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये इजीली न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड कराता है वहां पे। एक तो वो चीज, और दूसरी बात ये है कि आप बोलोगे सर डीएनए फ्रेगमेंट क्यों नहीं लिया आरएनए फ्रेगमेंट क्यों लिया, क्योंकि आरएनए जो है इसके साथ जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो मोर रेडिली जो है बाइंड हो जाते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, वो क्या करता है, वो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को ऑन प्राइमर। किसके ऊपर, प्राइमर के ऊपर। ये पॉइंट आप याद करना। तो हम ये बोलेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो वो एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करा पाता है, तो उसको चाहिए एक शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए। उसके बाद वो क्या करता है, उसी के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को 1 by 1 ऐड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है ऑन द आरएनए पॉलीमरेज, तो ये आरएनए पॉलीमरेज, ये जो हमारे पास आरएनए का फ्रैगमेंट है जो डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, तो यहाँ पे मोर रेडिली जो है वो बाइंड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास और एक एंजाइम, और आप याद रखना ये जो प्राइमेज होता है, इट इज ए डीएनए डिपेंडेंट या डीएनए डिपेंडेंट
आरएनए पॉलीमरेज। ये प्राइमेज होता है, ये आरएनए बनाता है, तो आरएनए किसके थ्रू बनता है? आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। लेकिन आपको याद रखना है ये आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए डिपेंडेंट है, इट इज डायरेक्टेड बाय द डीएनए टू मेक द प्राइमर। वन मोर थिंग, आफ्टर मेकिंग द प्राइमर, अब प्राइमर तो बन गया और न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हमारे पास नई जो फ्रेगमेंट ऑफ या नई स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो फॉर्म हो गई, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड वजूद में आ गया। तो जैसे हमने देखा यहाँ से 5' टू 3' था, तो हमने देखा यहाँ से 3' टू 5' हमारे पास बन रही नई स्ट्रैंड। तो अगर हमारे पास यहाँ से है 3' टू 5' से फॉर इंस्टेंस, और यहाँ से हमारे पास न्यू स्ट्रैंड बनेगी 5' टू 3', तो समझ लो हमारे पास नई स्ट्रैंड जो है वो वजूद में आ गई। अब इस प्राइमर को जो है वो रिमूव कराना है, क्योंकि प्राइमर जो आरएनए फ्रैगमेंट हुई है तो रिमूव हुई, और जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगी। जब हमने इसको रिमूव किया तो गैप क्रिएट होगी, तो गैप क्रिएट फिल करने के लिए हमारे पास नए न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं हमारे पास। और एक एंजाइम है, इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे इन इस प्रोसेस में कैसे प्राइमर ऐड होता है और कैसे फॉर्म होता है। तो फिर हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे होता है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, याद रखना फर्स्ट है। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है इसकी दो एक्टिविटीज, एक्चुअली क्या करता है, रिमूवल ऑफ प्राइमर, रिमूवल ऑफ प्राइमर, प्राइमर को निकालना डीएनए स्ट्रैंड से, एंड फिलिंग ऑफ गैप, और जो गैप वहां पे क्रिएट हुई वो गैप जो है फिल करना विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये काम होता है हमारे किसका, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सो दीज आर द एंजाइम्स which we require for the DNA replication. Few enzymes we have discussed. In the next lecture, we will discuss some more enzymes about it, and also we will discuss the various steps which are involved in a DNA replication.